Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture, we will discuss one more example regarding correlation and regression, and SPSS software will be utilized. The question is taken from the reference book, page 422. A problem is taken from the exercise 10.7, in which x and y are given in pairs, and few points are given here. First of all, we have to plot the scatter diagram. Next is linear regression is going to be fitted, and next is compute residuals and verify the property that sum of residuals is equal to 0, that is y minus y hat is equal to 0. And using this regression, we have to predict y for the given value of x, which is 10. You can observe from here that there is no any 10 value. So 10 must be here, and we have to forecast y value for the given value of x, which is 10. By using SPSS, so I am going to open SPSS here. In variable view, we define both variables x and y as a scale measure, and then enter the data. And after entering the data, first of all, I have to plot the scatter diagram, graph, chart builder, and then OK. Select scatter plot and then choose first format. Double click it. Drag drag x on x-axis and y variable along y-axis, and then OK. In output window, you can see it's a scatter plot, and you can observe that there is a positive relationship between these two variables, x and y. We can double click it and open the chart builder, and from the chart editor, we can click here, add fit line at total. By clicking it, we can have another line here, which is the least square regression line, and on the top right corner, R square is mentioned as 0.89. So both A and B can be estimated from the chart editor and also from the worksheet. Okay. Whenever I'm going to close this, the all editing is made in the output window. So in the worksheet, from here, first of all, fit the regression line and then save the predicted value along with the calculation of residuals. So analyze and then regression, linear. From here, choose y variable as a dependent variable. So select it here, x as an independent variable. इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टैटिस्टिक्स को क्लिक किया. यहाँ पर आप देखिए एस्टिमेट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक हुए हैं, मॉडल फिट भी क्लिक हुआ है. इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि मॉडल फिट भी हमें चाहिए और एस्टिमेट्स ए और बी की वैल्यूज़ भी चाहिए. थर्ड, आपने सेव को क्लिक करना है. इसलिए सेव को क्लिक करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन में था कि आपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और उसके बाद आपने सम ऑफ रेजिड्यूल्स भी कैलकुलेट करने हैं. ठीक है जी. सेव को यहाँ से क्लिक किया और अब आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और रेजिड्यूल्स दोनों नज़र आ रहे हैं कॉलम्स में. और पहली ऑप्शंस दोनों साइड पे किसकी हैं? अनस्टैंडर्डाइज की. आपने दोनों को ही यहाँ से चेक बॉक्स कर दिया. ठीक है जी. और रेजिड्यूल्स हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हम रेजिड्यूल्स का सम निकाल के देखना चाह रहे हैं कि वो सम 0 आ रहा है कि नहीं. ठीक है जी. यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और इसको ओके कर दिया. अब आप देखिए रिग्रेशन में आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो आर स्क्वायर का रिज़ल्ट है 0.892, यानी 89% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस रिग्रेशन. ठीक है. तो बाकी कितनी रहेगी? 11% जो है वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड है. अच्छा, उसके बाद आपको रिग्रेशन की सामने देखें कि पी वैल्यू जो है वो 0.00 है. इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है. रिग्रेशन जो है वो अप्लाई किया जाना था इस पर, उसकी एक वर्थ है. उसके बाद कोफिशिएंट्स का टेबल देखिए. कोफिशिएंट्स के टेबल में आपका फर्स्ट जो कॉलम है
उसमें कांस्टेंट और एक्स है। कांस्टेंट के पैरेलल आपके सामने जो वैल्यू दी हुई है इसमें वो ए की वैल्यू दी हुई है, और एक्स के पैरेलल जो वैल्यू दी हुई है वो बी की वैल्यू दी हुई है। तो ए कितना है 2.002 और बी कितना है आपका 0.387। ठीक है जी, पॉजिटिव है, और हम देख रहे थे कि स्कैटर प्लॉट से कि इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, एक्स और वाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एज एक्स इंक्रीजेस वाई ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, इसके बाद आप देखिए कि हम इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, और वर्कशीट में देखिए कि थर्ड कॉलम जो है वो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ का है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ का है, ट्रेंड वैल्यूज़ का है, कुछ भी आप इसको कह दें। तो यह वाई हैट का कॉलम है आपके पास। इस वाई हैट को आप वाई से कंपेयर करना चाहें तो आप इंडिविजुअल वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 2.1 को 2.38 से, 2.5 है तो 2.38 है, थोड़ी सी डेविएशंस आ रही हैं। वो डेविएशंस कितनी हैं वो कैलकुलेट होके नेक्स्ट कॉलम में आई हैं रेजिड्यूल्स _1। ठीक है जी, _1 ये शो करता है कि आपने एक ही मॉडल फिट किया है। अगर हम इसी पे दूसरा मॉडल भी फिट करें और फिर उसकी प्रेडिक्टेड और उसका रेजिड्यूल्स कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली उसके साथ _2 आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को एट अ टाइम भी फिट करके देख सकते हैं और फिर उनको आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल जो है उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, अब तो इसमें अब आपने रेजिड्यूल्स का सम करके चेक करना है, और एक आपने मज़ीद ये काम करना है कि 10 जो है एक्स की वैल्यू रखनी है और देखना है कि वाई हैट यानी कि प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या आएगी। तो इसका एक वे तो ये है कि आप एक्स के नीचे ही थोड़ी सी स्पेस के साथ 10 एंटर कर दें। ठीक है जी, 10 आप जो भी एंटर करेंगे वो उसके लिए आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, पूरा एक बार दोबारा रन कर देते हैं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, चूंकि सब कुछ सिलेक्टेड है, जस्ट ओके कर दिया आपने। ठीक है, जब ओके किया तो इसको तो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो एज इट इज़ दोबारा कैलकुलेट हो गया होगा। अब आप देखिए हमने दूसरी बार रन किया है ना, तो अब प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं वो _2 के साथ आई हैं। उसने कहा एक बार मॉडल फिट किया था, अब दूसरी बार मॉडल फिट कर रहे हैं। अब आप देखिए प्रिडिक्टेड 2 के अंडर गैप के साथ 10 के पैरेलल कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है, 5.86। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 10 होती तो y की प्रिडिक्टेड वैल्यू या फोरकास्ट वैल्यू क्या है, 5.86। ठीक है जी, ये फोरकास्ट है। इसका मतलब है कि ये जो 1 2 3 अप टू 7 है, इसके अलावा भी आप कोई वैल्यू देना चाहें और उसके लिए आप y को फोरकास्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर एक से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे 10 के अंडर, तो वो सारों के लिए आपको फोरकास्ट करके वैल्यूज़ दे देगा। ठीक है जी, और फिर अब हम यूँ करते हैं, रेजिड्यूल्स तो सेम ही होंगे क्योंकि हमने कोई चेंज तो किया नहीं मॉडल में। तो हम यूँ करते हैं कि सम चेक कर लेते हैं, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और दोबारा से भी आपने डिस्क्रिप्टिव में जाना है और कौन सा वेरिएबल सेलेक्ट करना है, आपने रेजिड्यूल्स का। ठीक है, चाहे ये रेजिड्यूल कर लें आप या नीचे वाला रेजिड्यूल, दोनों के सेम ही रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, और जस्ट इसको लेकिन हमने पहले देख लेना है कि ऑप्शंस में सम को क्लिक कर देना है। ठीक है जी, और मीन को अनचेक कर दिया, कंटिन्यू करके ओके कर दिया। अब आप देखिए जो लास्ट आपके पास जो टेबल आया है जिसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्टिव्स, इसमें जो सम दिए हुए हैं अनस्टैंडर्डाइज्ड रेजिड्यूल के, वो सम के अंडर आप देखिए 0.000। इसका मतलब है कि आपका जो सम आ रहा है रेजिड्यूल्स का वो 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप रेजिड्यूल्स का सम भी कर सकते हैं। और जो इसमें डिफरेंट चीज़ हमने कैलकुलेट की कि वो वैल्यू जो आपकी एक्चुअल डेटा में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी एक्स की, उसकी वैल्यू के लिए हम वाई को फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए एक्स के नीचे थोड़ी सी स्पेस के साथ या साथ भी लिख सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने स्पेस क्रिएट की है। आप वैल्यूज़ को लिख दें तो उसके पैरेलल आपके प्रेडिक्टेड के अंदर जो वैल्यूज़ आएंगी वो फोरकास्ट वैल्यू होंगी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको एस पे रन करना है। ठीक है जी, थैंक यू।